اس ویڈیو کو دیکھنے سے قبل اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دور سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہرے دار باڑ پھلانگ کر اندر آ رہے تھے۔ میں فرار ہونے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دینا چاہتا تھا۔ میں دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ عیاشیوں، سازشوں اور ظلم و بربریت سے بھرے ہوئے اس شہر کے حکمرانوں اور ان کے حواریوں کو ایسا سبق دوں گا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ بھاگتے ہوئے مسلح پہرے دار عمارت کے کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ملکہ مظلومیت کی تصویر بنی ہوئی بری طرح آہو بکا کر رہی تھی۔ اسے گرفتار کر لو، ملکہ نے چیخ کر کہا۔ میں یہاں تنہائی میں سیر کرنے آئی تھی کہ میری خلوت میں زبردستی گھس آیا۔ یہ مجھے بے عزت کرنا چاہتا تھا۔ پہرے داروں کی تعداد 1 درجن سے کم نہیں تھی۔ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے تو میرا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ لیکن میں نے مزاحمت ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بغیر کسی مزاحمت کے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر لیا اور سپاہیوں نے آنن فانن مجھے رسیوں میں جکڑ دیا۔ مجھے ایتھنز کی اس عیاش اور مکار ملکہ کی اس احمقانہ حرکت پر سخت غصہ تھا کہ اس نے میرے ساتھ واقعی بڑا ظلم کیا تھا۔ میری شرافت اور نیکی کے بدلے وہ میری جان کے در پر ہو گئی تھی اور اب اس نے میری زندگی کو ختم کروانے کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مجھے میری حکم عدولی اور گستاخی کی پوری سزا دلوائے بغیر نہ چھوڑے گی، اور ظاہر ہے کہ اس نے جو الزام میرے اوپر لگایا تھا اس کی سزا موت کے علاوہ اور کیا ہو سکتی تھی۔ کسی شخص میں اتنی جرت نہ تھی کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ تالاش کے ملکہ استونیا کی جانب بری نظر سے دیکھے، اور ایسی جرت کرنے والا شخص بھلا کیوں کر زندہ رہ سکتا تھا؟ ادھر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ملکہ استونیا کو اس کی مکاری اور دغا بازی کی سزا دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ میں اسے ایسا سب سکھاؤں گا کہ وہ اسے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک یاد رکھے گی، اور جب تک وہ زندہ رہے گی کبھی کسی بے گناہ مرد پر ایسے گھٹیا اور جھوٹے الزامات لگانے کی جرت نہیں کرے گی۔ چنانچہ اپنے اس فیصلے کے تحت میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور سپاہیوں کو اپنی من مانی کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ اور یہ تو شہزور ہے، ایک سپاہی نے مشل میرے قریب لا کر مجھے دیکھتے ہوئے غور سے کہا۔ ہاں یہ شہزور ہے واقعی، دوسرے نے مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اتنی رات کا یہاں کیا کر رہا ہے، اور یہ محل میں بغیر اجازت کے گھسا کیسے؟ اسے پہاڑی والے قید خانے میں لے جا کر قید کر دو۔ ملکہ استونیا نے چیخ کر سپاہیوں کو حکم دیا۔ یہ چوروں کی طرح شاہی محل میں گھسا ہے اور اس نے مجھے تنہا پا کر میری عزت پر حملہ کرنا چاہے۔ تمہاری عزت؟ میں نے تلخی سے کہا۔ ملکہ استونیا کیا واقعی تمہاری بھی کوئی عزت ہے؟ خاموش گستاخ، ایک سپاہی نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ اپنا ہاتھ پکڑ کر در سے کرانے لگا۔ ملکہ استونیا حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی شجاعت اور جرت کی قوتوں کا بڑا گھٹیا استعمال کیا ہے شہزور۔ دوسرے سپاہی نے میرے جسم کے گرد رسیوں کی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ نے تمہیں عزت بخشی تھی اور تمہیں گراں قدر انعام و کرام سے بھی نوازا تھا، لیکن افسوس کہ تم نے ان اعزازات کی قدر نہیں کی۔ اب موت تمہارا مقدر ہے اور تم اسی کے مستحق بھی ہو، لیکن مجھے ذاتی طور پر اس کا افسوس ہوگا، کیونکہ اس طرح ایتھنز اپنے ایک بہادر سے محروم ہو جائے گا۔ یہ موت کی آرزو کرے گا اور موت اس سے بھاگے۔ ملکہ استونیا نے نفرت سے دانت پیس کر کہا۔ میں اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنے دوں گی۔ اس نے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس کے جسم کے روئیں سے اپنا انتقام لوں گی۔ یہ میرا قیدی ہے اور میں ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کروں گی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے استونیا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ میں ہمیشہ اپنے مقدر کا فیصلہ خود ہی کرتا ہوں۔ اسے فی الحال پہاڑی والے قید خانے میں لے جاؤ۔ ملکہ استونیا نے میری بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور وہاں لے جا کر اسے بند کر دو، اور خبردار اس واقعے کی اطلاع اس وقت تک کسی کو نہ ہو جب تک کہ میں خود اس کا حکم نہ دوں۔ خود شہنشاہ کو بھی ابھی اس کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خود انہیں مناسب وقت پر اس واقعے سے آگاہ کروں گی۔ فی الحال اسے ارکیداس کی تحویل میں دے دو اور اسے میری طرف سے ہدایت کر دو کہ اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرے۔ سپاہیوں نے فرما برداری کے ساتھ اپنی گردنیں جھکا دی اور میرے رسیوں سے بندھے ہوئے جسم کو کھینچتے ہوئے ایک طرف لے چلے۔ ہم لوگ محل کے اسی پچھلے دروازے سے باہر نکلے جس دروازے سے میں کچھ دیر پہلے داخل ہوا تھا، لیکن تب کی اور بات تھی اور اب کی صورتحال میں بڑا فرق تھا۔ اس وقت میں آزاد طور پر اور اپنی مرضی سے محل میں داخل ہوا تھا، اور اب میں ظاہراً ملکہ اور اس کے سپاہیوں کی مرضی سے اس جگہ سے جا رہا تھا۔ محل کے دروازے کے باہر گھپ اندھیرا اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں تاریکی میں سپاہیوں کے حفظوں کو گننے کی کوشش کی،
वो तादाद में 10 थे और उन्होंने चारों तरफ से मुझे अपने घेरे में ले रखा था। हम लोगों का पैदल सफर न जाने कितनी देर तक जारी रहा। अंधेरे में समत और मकाम का अंदाजा लगाना मुश्किल था, ताहम इतना अंदाजा तो मैं जरूर लगा सकता था। हम लोग शहरी हदूद से बहुत आगे निकल आए हैं और अब जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं और इर्द गिर्द छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले। आखिर काफी देर तक चलने के बाद नीम तारीकी में डूबी हुई पत्थरों की एक मुहेब इमारत के धुंधले धुंधले नकूश मेरी निगाहों में उभरने लगे। ये इमारत पहाड़ियों के दरमियान में इसी तरह से बनाई गई थी कि बाहर से देखने में बिल्कुल ही नजर नहीं आती थी। हम लोगों का काफिला एक बड़ी सी चट्टान के सामने से गुजर कर मुड़कर उसी चट्टान के पीछे पहुंच गया। यहाँ लकड़ी का एक बहुत बड़ा और भारी भरकम सदर दरवाजा हमारे सामने था, जिसके आगे 2 मुसल्ला मुहाफिज टहल रहे थे। दरवाजे पर एक चर्बी की मशल चल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में मुहाफिजों की शक्लें बड़ी पुरस्कार और डरावनी से लग रही थी। कौन है? दोनों पहरेदारों में से एक की आवाज बुलंद हुई और उसने फौरन नयाम में से अपनी तलवार बाहर निकाली। दूसरे मुहाफिज ने आगे बढ़कर दीवार में लगी हुई मशल को निकालकर हाथ में पकड़ा और हमारी तरफ बढ़ा। अर्किदास कहाँ है? हमारे काफिले के सरदार ने मुहाफिज के सवाल को नजरअंदाज करते हुए दरियाफ्त किया। अर्किदास काफी जरा देर पहले अपने घर गया है, मुहाफिज ने जवाब दिया। तुम कौन हो और ये किस कैदी को यहाँ लाए हो? हम शाही महल के मुहाफिज हैं, हमारे काफिले के सरदार ने जवाब दिया। तुम जल्दी से अर्किदास को बुलाओ, हम मलका एस्तोनिया के कैदी को लेकर आए हैं। मलका एस्तोनिया के कैदी को? उस शख्स ने कहा और फिर अपने साथी से कहा कि वो अर्किदास को बुला लाए। अर्किदास यकीनन बिल्कुल कहीं करीब ही रहता था, क्योंकि 1-2 मिनट में वो उस मुहाफिज के साथ आ गया। मैं नीम तारीकी में अर्किदास को देखा। वो एक बेहद खूबसूरत और सेहतमंद जिस्म का मालिक था। उसकी शक्ल से काफी रोब टपक रहा था। अच्छा, तो ये तुम हो गोमर? उसे हमारे काफिले के सरदार को पहचान कर उससे मुखातिब होकर कहा। क्या किस्सा है? किस्सा ये है मेरे दोस्त के इस वक्त एथेंस का नामी ग्रामी पहलवान शहजोर और मलका एस्तोनिया के कैदी की हैसियत से हमारे साथ है। मलका एस्तोनिया का हुक्म है कि इसे तुम्हारी तहवील में दे दिया जाए और तुम इसको कैद खाने में डाल दो। इस बदनसीब के मुकद्दर का फैसला मलका आलिया खुद करेंगी और जब तक इनका हुक्म ना हो इस वाक़े के बारे में किसी को कुछ भी इल्म नहीं होना चाहिए। मलका आलिया का हुक्म सर आंखों पर, अर्किदास ने जवाब दिया और अपने लिबास की जेब में से चाबियों का एक भारी सा गुच्छा निकाला। उसे एक चाबी तलाश करके ताले में लगाई। मैंने गौर से देखा, वो लोहे का एक बहुत बड़ा और वजनी ताला था जो लकड़ी के देव पैकर दरवाजों के मजबूत आहिनी कुंडों में लगा हुआ था। अर्किदास ने चाबी लगाकर ताला खोला और दरवाजे को आगे की तरफ धक्का दी। दरवाजा एक जबरदस्त चिचराहट के साथ खुलता चला गया। गोबर और अर्किदास ने 4 सिपाहियों को अंदर आने का हुक्म दिया और बाकी से बाहर ठहरने के लिए कहा। एक सिपाही ने जलती हुई मशल हाथ में ले ली। हम लोग एक तवील ड्योढ़ी तय करके एक और भारी दरवाजे के सामने पहुंच गए। इसमें भी एक वजनी ताला लगा हुआ था। अर्किदास ने एक चाबी से वो ताला खोला और हम लोग एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गए, जिसके किनारे पर सीढ़ियां नजर आ रही थी। मेरा जिस्म अभी तक पूरी तरह रस्सियों में जकड़ा हुआ था और 2 मुहाफिज मेरे दाएं बाएं चल रहे थे, जबकि एक पीछे से मुझे टहके दे रहा था। हम लोग तवील सीढ़ियां उतर कर एक तहखाने में दाखिल हो गए। एक छोटा सा तहखाना था, लेकिन यहाँ भी लकड़ी का एक भारी दरवाजा था जिसमें एक ताला लगा हुआ था। अर्किदास ने यह तीसरा ताला भी चाबी की मदद से खोला और अब हमारे सामने एक और मुख्तसर सा कमरा था, जिसकी छत अंधेरा होने के बावजूद बहुत ऊंची नजर आ रही थी। इस कमरे में दाखिल होते ही मुझे सख्त ताफुन का एहसास हुआ। कमरे में जगह जगह घास फूस के ढेर लगे हुए थे और मोटे मोटे चूहे इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे। नीम तारीकी में इनकी आंखें बड़े खौफनाक और पुरस्कार अंदाज में चमक रही थी। दूर एक गोशे में घास फूस के एक ढेर पर एक इंसानी जिस्म पड़ा हुआ नजर आ रहा था। कदमों की आहट और रोशनी के बायस इंसानी जिस्म में हरकत पैदा हुई और वो उठकर बैठ गया। अखलूस, अर्किदास ने इंसानी जिस्म से मुखातिब होकर कहा, हमने तुम्हारी तन्हाई दूर करने का सामान कर दिया है। आज तुम्हारे साथ इस कोठड़ी में एक नए कैदी का इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि तुम इसकी सोहबत से इस वक्त लुत्फ अंदोज होगे जब तक कि इसके मुकद्दर का फैसला नहीं हो जाता। और इसके साथ ही अर्किदास ने हुक्म दिया कि मेरे जिस्म की रस्सियां खोलती जाएं और जैसे ही सिपाहियों ने मेरी रस्सियां खोलनी शुरू की, वैसे ही अर्किदास ने अपनी कमर से लगी हुई तलवार नयाम से खींच कर निकाल ली। गोबर और बाकी मुहाफिजों ने भी अपनी अपनी तलवारें नयाम से बाहर निकाल ली। मैं उनकी इस हमाकत पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। भला इन बोनों के ये खिलौने मेरा क्या बिगाड़ सकते थे। वो अपनी दानिश में हर किस्म की सूरत हाल से निमटने की तैयारियां कर रहे थे और इस खतरे के पेश नजर कि कहीं मैं रस्सियों से आजाद होने के बाद फरार होने की कोशिश न करूं। उन्होंने अपनी तलवारें सौंध ली थी, लेकिन इन बेचारों को इस बात की क्या खबर थी कि सारी दुनिया की तलवारें भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूर कोने में चले जाओ,
मेरी रस्सियां खुल जाने के बाद अर्किदास ने अपनी तलवार के नोक को मेरे सीने में चबोते हुए कहा। मैं खामोशी और फर्मा बरदारी के साथ दूर कोने में उस तरफ चला गया जहां घास फूस के ढेर में वो इंसानी जिस्म बैठा हुआ था। उसके बाद अर्किदास, गोमर और उनके साथी एहतियात के साथ कमरे से बाहर निकले। भारी दरवाजा एक चिचराहट के साथ बंद हो गया और बाहर से ताला लगाने की आवाज सुनाई दी। इन लोगों के साथ ही मशल भी बाहर चली गई और कमरे में कब्र की सी तारीकी रह गई। ऐसी दबीज तारीकी के हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता था। यूं मालूम होता था गोया सारी फिजा में किसी ने भयानक स्याहियां उंडेल दी हैं। अंधेरा होते ही कमरे में मोटे मोटे खूनकार चूहों की भाग दौड़ शुरू हो गई। वो आजादी के साथ इधर उधर घूम रहे थे। दो एक चूहे मेरे जिस्म पर भी चढ़ आए, लेकिन मैंने इन्हें चींटी की तरह मसल कर फेंक दिया। मेरे हाथ गंदे हो गए और मुझे सख्त घिन आने लगी। मेरा नाम अकलूस है। घोर अंधेरे में मेरे करीब से एक मर्दाना आवाज बुलंद हुई। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? एथेंस के लोग मुझे शहजोर कहते हैं, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। और मैं यहाँ इसलिए लाया गया हूँ कि मैंने एथेंस की बूढ़ी और अयाश मलका की नफसानी ख्वाहिश की तकमील से इनकार कर दिया था। मलका एस्तोनिया ने गुस्से और इंतकामी जज्बात से मगलूब होकर मुझे यहाँ फेंकवा दिया है। एस्तोनिया कहती है कि अब वो मेरे मुकद्दर का फैसला खुद करेगी। ओह, तो तुम भी एस्तोनिया के जहर के डसे हुए हो। घास फूस के ढेर में से आवाज आई। क्या तुम मुझे तफसील से बताना पसंद करोगे कि एस्तोनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने मुख्तसरन उसे एस्तोनिया के बुलावे, अपने महल में जाने, एस्तोनिया की दावत से इनकार और अपनी गिरफ्तारी के बारे में बता दिया। अकलूस खामोशी से मेरी बातें सुनता रहा और फिर मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। इस वक्त यहाँ घोर अंधेरे हैं और इस अंधेरे में मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, और वो ये कि तुम बहुत खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान हो। यही वजह है कि एस्तोनिया ने तुम्हें मुंतखब किया था। बहरहाल तुम अगर इसकी दावत कबूल भी कर लेते तो भी तुम्हारा अंजाम इससे मुख्तलिफ ना होता। जवाब होने वाला है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि दूसरी सुबह सूरज निकलने से पहले उस शख्स को हलाक किया जाता है। ये काम वही पहरेदार अंजाम देते हैं जो बाढ़ के पीछे मौजूद हैं और मलका के खास आदमी हैं और जिनका सरदार गोमर है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। ये सिपाही सरदारी खजाने से तनख्वाह पाने के अलावा मलका से भी अलग तनख्वाह पाते हैं, जो गोया राजदारी की कीमत है। बदनसीब नौजवान को सूरज निकलने से पहले हलाक कर देने के बाद इसकी लाश को वहीं बाग में दफन करने के बाद मिट्टी बराबर कर दी जाती है। कितनी अजीब बात है। जैसे ही कोई नौजवान चोरी छुपे मलका के बुलावे पर उसकी खलवत में दाखिल होता है, वैसे ही बाग के एक वीरान गोशे में उसकी कब्र खोदने की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। एक जीते जागते सेहतमंद और जिंदगी से भरपूर शख्स की कब्र जिसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं होती कि वो अगले दिन का सूरज नहीं देख सकेगा। अकलूस ने अफसुर्दा लहजा में कहा। लेकिन क्या शाह तालाश को अपनी मलका की इन बदआमालियों की कोई खबर नहीं है? मैंने पूछा। किसकी मजाल है जो शाह तालाश के सामने इस बारे में जुबान खोलने की जुर्रत कर सके? अकलूस ने कहा, वैसे भी मलका बड़ी चालाकी और अयारी से काम लेती है और उसके खास खास आदमियों के अलावा और किसी को यह बात मालूम नहीं है और इन लोगों को इस भारी रकम के एवज खरीद रखा है। इनमें से कोई भी मलका के राज को अफशा करने के बारे में सोचता नहीं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम्हें ये सारी बातें तफसील के साथ कैसे मालूम होगी? मैंने पूछा। एक लंबी और दर्दनाक कहानी है, अकलूस ने जवाब दिया। सुबह होने पर मैं तुम्हें अपनी दास्तान का सुनाऊंगा। अभी क्यों नहीं? मैंने सवाल किया। अभी इसलिए नहीं कि मुझे अंधेरे में बात करने से सख्त उलझन होती है। जब तक मैं अपने मुखातिब का चेहरा न देखूं मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, उसने जवाब दिया। मैं उसकी इस अजीबो गरीब मंतक पर हैरान रह गया। बहरहाल उसकी मर्जी थी, मैं खामोश हो गया। सारे कमरे में चूहों की भाग दौड़ बुरी तरह जारी थी और अंधेरे में जगह जगह उनकी चमकती आंखें नजर आ रही थी, लेकिन अब वो मेरी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। बार बार तरह तरह की ससराहटों की आवाजें सुनाई देती थी जिनसे अंदाजा होता था कि इस कमरे में चूहों के अलावा दीगर हशरातुल अर्ज भी मौजूद हैं। क्या इस कमरे में बहुत ज्यादा चूहे हैं? मैंने अकलूस से पूछा। हाँ, इनकी खासी बड़ी तादाद मौजूद है और इनके कई खानदान यहाँ आबाद हैं, उसने क्रिस्तियानी हंसी के साथ हंसते हुए कहा। बात यह है कि जब मैं पहले पहल यहाँ आया था तो इन चूहों के हाथों सख्त परेशान हुआ था। वो रात को मेरे ऊपर चढ़ आते और कई मरतबा इन्होंने मुझे काट भी खाया। मेरे पास कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिससे मैं इन्हें मार सकता या भगा सकता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इस कोठड़ी में घास फूस का नया जखीरा लाया गया जिसमें इत्तेफाक से एक मोटी और लंबी सी लकड़ी भी साथ में आ गई। मैंने इसे हाथ में लेकर देखा। ये बेद की मजबूत लकड़ी का तकरीबन 4 फुट लंबा टुकड़ा था। इस लकड़ी ने गलीज जमाने में मेरी बड़ी मदद की। मैंने इसके जरिए रातों को कई चूहों को मार मार कर हलाक किया। उसके बाद अपने लेटने के लिए एक गोशा मखसूस कर लिया। अब चूहे इस गोशे का रुख नहीं करते क्योंकि वो लकड़ी से खौफजदा रहते हैं। अलबत्ता बाकी सारे कमरे में वो दनदनाते फिरते हैं और खूब मोटे हो रहे हैं। लेकिन इन चूहों को यहाँ खाने को क्या मिलता है? और अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता तो फिर वो यहाँ जिंदा किस तरह है? मैंने पूछा।
उफ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इस गलीज तहखाने में इंसान को किस किस तरह आजार पहुंचाया जाता है। उसने कहा, इन चूहों की बाकायदा परवरिश की जाती है और इन्हें भी रोज इसी तरह खाना दिया जाता है जिस तरह कैदी को दिया जाता है। न जाने कहां से खाने की जूठन जमा की जाती है जिसमें सड़ी गली अशिया भी शामिल होती हैं। गालिबन ये वो अशिया होती है जो लोग अपने घरों के बाहर फेंक देते हैं और फिर इस सारे मलगूबे को चूहों और दीगर हशरातुल अर्ज की ज़ियाफत की घर से इस तहखाने में डाल दिया जाता है। चूहों और दीगर कीड़े मकोड़ों को खूब पेट भर कर खाने को मिल जाता है। इससे इन्हें यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इनकी अफजाइश नस्ल भी होती रहती है और तादाद में बराबर इजाफा होता रहता है। ताहम इस लकड़ी के मिल जाने से इतना ज़रूर हुआ है कि अब मेरी रातें ज़रा आराम से गुजर जाती हैं, वरना पहले तो मैं सारी सारी रात जाकर इन वहशी चूहों से जंग करता रहता था और मेरी तमाम तर मुस्तैदी के बावजूद वह मुझे काट लेने में कामयाब हो जाते थे। किस कदर इंसानियत सोज माहौल है इस तहखाने का। मैंने अफसुर्दगी के साथ कहा, क्या किसी इंसान के लिए इतनी ही सजा काफ़ी नहीं है कि उसे इस तंग तारीख कोठड़ी में बंद कर दिया जाए? इन जालिमों का इस पर भी दिल नहीं भरता। अब ये चूहे तुम्हें भी परेशान करेंगे। अकलूस ने कहा, ऐसा करो कि ये लकड़ी ले लो, मैं आज रात लकड़ी के बगैर ही गुजारा कर लूंगा, कल इसके बारे में कुछ सोचेंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैंने जवाब दिया। अभी तक किसी चूहे ने मुझ पर हमला नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि वो मुझ पर हमला करेंगे भी नहीं। क्यों? अकलूस ने पूछा, क्या तुम गोश्त पोश्त के बने हुए इंसान नहीं हो? क्या तुम्हारा जिस्म मिट्टी और पत्थर से बनाया गया? नहीं, ये बात नहीं है, मैंने हंसते हुए जवाब दिया और फौरन मेरे जहन ने एक माकूल उज़र सोच लिया। बात यह है मेरे दोस्त के एक बार मैं सख्त बीमार पड़ गया था और कई नामी ग्रामी तबीबों ने मेरा इलाज किया। इन तबीबों की जुबानी ही मुझे ये बात मालूम हुई थी कि मेरे बदन के गोश्त में एक खास किस्म की महक है जो हशरातुल अर्ज के लिए सख्त नापसंदीदा है। इसलिए कोई छोटा मोटा जानवर या कीड़ा मकोड़ा मेरे जिस्म को नहीं छूता। मुझे खुशी है कि मेरे बदन के गोश्त की यह खुसूसियत आज मेरे लिए इस अंधेरे तहखाने में एक बड़ी उम्मीद और बड़ा सहारा बन गई है। हैरत है, अकलूस ने जवाब दिया, मैंने आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं सुनी। थोड़ी देर हम लोग इसी तरह इधर उधर की बातें करते रहे और फिर थोड़ी देर बाद अकलूस खराटे लेने लगा। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं अभी तक फर्श पर बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं। मैं अंधेरे ही में टटोल कर घास फूस के ढेर पर लेट गया। मेरी पुश्त का दबाव पड़ते ही अचानक बड़े जोर से चीख की आवाज बुलंद हुई। मैं जल्दी से अपनी पुश्त जमीन पर से हटा ली और इस जगह को टटोल कर देखा। वहां एक मोटा ताजा चूहा मरा पड़ा था। उसका जिस्म बेहरकत हो गया था मगर उसमें गर्मी मौजूद थी। मैंने चूहे के भारी जिस्म को उंगलियों से पकड़कर दूसरे कोने में उछाल दिया और खुद आराम से लेट गया। चारों तरफ गहरा मौत का सा सन्नाटा था और सन्नाटे में चूहों और दीगर हशरातुल अर्ज की ससराहटें एक अच्छे मजबूत दिल गुर्दे वाले आदमी को भी खौफजदा करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन जाहिर है कि मैं इन तमाम चीज़ों से लाताल्लुक था। मैं सोचने लगा कि आज शाम से लेकर अब तक हालात में कितनी ज़बरदस्त तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। शाम तक मैं एथेंस का हीरो था और इस वक्त एक वीरान और तंगो तारीख तहखाने में पड़ा हुआ हूँ। जब मैं क्लब से रवाना हुआ था तो सिर्फ मगरिब को मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब जब मैं सारी रात वापस नहीं जाऊँगा तो शायद मगरिब को इतनी ज़्यादा तशवीश न हो, क्योंकि मुमकिन है वो यही समझेगा कि मैं मलका अस्तोनिया की खलवतों का मेहमान हूँ। लेकिन जब कल रात भी मैं वापस नहीं पहुँचूंगा तो उस्ताद को मेरी तलाश होगी और मगरिब मजबूर होगा कि उस्ताद को मेरे बारे में बता दे। मेरी गुमशुदगी उस्ताद के लिए वाकई परेशान कुन होगी। हो सकता है उसे अपने किसी आदमी के जरिए मेरी गिरफ्तारी की इतला भी मिल जाए, क्योंकि उसका शुमार भी एथेंस के बारसूख लोगों में होता है और उसकी पहुंच दूर दूर तक है। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि मलका अस्तोनिया को उसके किए की सजा देने के बाद मैं इस गद्दार और बेरहम शहर से हमेशा हमेशा के लिए कूच कर जाऊंगा, जहां हर हर कदम पर साजिशें और फितने मेरे इंतजार में थे। इन्हीं ख्यालात में गलता मेरी आंख लग गई और मैं ना जाने कितनी देर तक सोता रहा। जब मेरी आंख खुली तो इस गार नुमा तहखाने में उजाला फैला हुआ था। सबसे पहले मेरी नज़र जिस चीज़ पर पड़ी वो एक बड़ा सा चकोर सुराख था जो छत में नजर आ रहा था और इस सुराख से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तहखाने की छत बहुत ऊंची थी और इसकी दीवारें पत्थर की थी। इसे देखने से ये मालूम होता था कि गोया इसे पत्थर में से काट कर बनाया गया है। इसकी छत इस कदर ऊंची थी कि कम अज कम काफी बुलंद 2 मंजिला मकान के बराबर थी। नीचे मौजूद कोई शख्स किसी तरह भी छत की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता था। छत के दरमियान में एक तकरीबन 4 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा बड़ा सा शगाफ था। ये उस तहखाने का वाहिद रोशनदान था जो मुझे रात में नजर नहीं आया था। इसी रोशनदान में से हवा और रोशनी मुयस्सर आती थी। तहखाने में इस दरवाजे के अलावा और कोई दूसरा दरवाज़ा भी मौजूद नहीं था जिसमें से गुजर कर रात को हम लोग अंदर दाखिल हुए थे और जिसे बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया था। इस दरवाजे में अंदर से कोई कुंडी नहीं थी। दिन की रोशनी में मैंने देखा कि यह लकड़ी का बहुत मोटा और भारी भरकम दरवाज़ा था
اور بہت اونچا تھا۔ کوئی قیدی اسے توڑنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے سامنے گھاس پھوس کے ایک بڑے سے ڈھیر پر ایک انسان پڑا تھا جو زمانہ قبل تاریخ کے انسانوں کی طرح ویچی نظر آ رہا تھا۔ اس شخص کے سر اور داڑھی کے بال اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ اس کا چہرہ ان میں چھپ کر رہ گیا تھا۔ میل کچیل میٹے ہوئے بال درختوں کی خشک جٹاؤں کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھوں پیروں کے ناخن درندوں کی طرح بڑے ہوئے تھے اور سارا جسم میل کی تہوں سے سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کے بدن پر کمر کے گرد صرف ایک بوسیدہ سا چیتڑا لٹک رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا پورا بدن ننگا تھا۔ میں اس عجیب الخلقت شے کو جسے انسان کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی تھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک سویا پڑا تھا۔